नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। ज़हीराबाद में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के ज़ेर एहतमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हयात तय्यबा पर इनामी मुकाबले जात मुनक़्क़द किए गए, जिनमें नात, सीरत क्विज़ और मॉडल प्रेजेंटेशंस शामिल थे। मुकाबला सुबह से दोपहर तक जारी रहा और बड़ी तादाद में तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया। कामयाब तलबा में रकमी इनामात और तौसीफ़ नामे अमीर मुकामी मोहम्मद कैसर गौरी, नाजिम ज़िला मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी और दीगर मेहमानों के हाथों तकसीम किए गए। नाजिम ज़िला ने कहा कि तलबा का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना खुश आइंद है और तालिबात को सच्चाई और दियानतदारी अपनाने की तलकीन की गई। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी नायब सदर के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि उसमें नोटा का ऑप्शन मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बीआरएस के चारों अरकान वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। के.टी.आर. ने वाज़ेह किया है कि बीआरएस न एनडीए का हिस्सा है न इंडिया ब्लॉक का, बल्कि ये सिर्फ तेलंगाना की आवाम की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि ये बाइकाट किसानों की मुश्किलात को उजागर करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि रियासत में यूरिया की शदीद किल्लत है और किसान परेशान हैं। के.टी.आर. ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत दोनों ने यूरिया की किल्लत पर कोई तवज्जो नहीं दी। हालांकि बीआरएस ने 20 दिन पहले ही इस मसले पर मुतनब्बे किया था। उन्होंने कहा कि 70 लाख किसानों की नुमाइंदगी करते हुए हमने वोटिंग का बाइकआउट किया है। कविता के मामले पर उन्होंने कहा, पार्टी ने पहले ही कार्रवाई की है और मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर लगाए गए इल्ज़ामात को झूठा करार देते हुए कहा कि अब तक 240 टीएमसी पानी इस्तेमाल हो चुका है। See Rahul, I'll tell you one thing. Whatever had to be discussed has been discussed in the party. Action has been taken. Once action has been taken, there is nothing further that I can add or comment. Because whatever had to be discussed, whatever had to be discussed internally on party forums, we have done that. And we have acted. And therefore, after the action has been taken, there is nothing further for me to comment or elaborate on. Yes. ఇప్పుడు దాదాపు 20-25 రోజుల కింద అనుకుంటాను ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల ఘట్టానికి తెరలేసినప్పుడు మేము స్పష్టంగా చెప్పాం, రాష్ట్రంలో 70 లక్షల మంది రైతులు, ఈరోజు మనం ఈ నిమిషం ఇక్కడెక్కడైతే మాట్లాడుతున్నామో, ఈరోజు మనం ఇక్కడున్నాం హైదరాబాద్లో, లక్షల మంది రైతులు ఇవాళ క్యూలలో ఉన్నారు ఎరువుల దుకాణాల ముంగట. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక జిల్లా కాదు, అన్ని జిల్లాల్లో ఎక్కడికక్కడ కొట్టుకుంటున్నారు, మహిళలు కొట్టుకుంటున్నారు, మహిళా రైతులు. అంత అరాచకమైన పరిస్థితి ఉంది. 20-25 రోజుల కిందట మేము మా పార్టీ నుంచి డిమాండ్ చేసినాం, ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యమా, కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యమా, ఎవరిది అన్నది మీరు తెలుసుకోండి, కానీ రైతులకు ఎరువులు అందించండి. మీరు అందిస్తే తప్పకుండా మీకు మద్దతు ఇచ్చే అంశం పరిశీలిస్తామని చెప్పాం. వీ హ్యావ్ నథింగ్ అగేన్స్ట్ ద టూ క్యాండిడేట్స్. ఇద్దరు మంచోళ్ళే కావచ్చు, జస్టిస్ రెడ్డి అండ్ సిపి రాధాకృష్ణన్ ఇద్దరు కూడా మంచోళ్ళే కావచ్చు, మేము కాదంటలేదు. కానీ ఇవాళ వాళ్ళు ఇద్దరు అభ్యర్థులు కూడా రెండు వ్యవస్థలకు ప్రతినిధులు. అటు ఎన్డీఏ, ఇటు ఇండియా, ఈ రెండు కూటమిలకి వారు ప్రతినిధులు. వారు వ్యక్తులుగా కాదు నించున్నది, ఇండిపెండెంట్గా నించోలేదు. ఒకరు కాంగ్రెస్ తరపున, ఒకరు బీజేపీ తరపున నించున్నారు. ఇటు కాంగ్రెసు అటు బీజేపీ ఇద్దరూ కూడా ఈ రాష్ట్ర రైతులను వేధిస్తున్నారు, సతాయిస్తున్నారు, చావగొడుతున్నారు. వాళ్ళు ముష్టి యుద్ధాలకు తిరిగే ఒక అరాచక పరిస్థితి తెచ్చిపెట్టినారు. 20-25 రోజుల కింద మేము హెచ్చరించినా, అప్రమత్తం చేసినా ఇంతవరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించలేదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించలేదు. అందుకే 70 లక్షల మంది తెలంగాణ రైతన్నల తరపున మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం. నిజానికి నోటా ఉంటే ఎన్నికలు బహిష్కరించడం మంచిది కాదు, ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో పాల్గొనాలి. నోటా అనే బటన్ ఉంటే అందులో నోటా కొత్తటోళ్ళం, కానీ నోటా లేదు. అటో ఇటో ఏదో రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అందుకే ఈ ఎన్నికలు మేము వీఆర్ అబ్స్టైనింగ్, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్ యాజ్ అ పార్టీ. నిన్నగాక మొన్న 2 రోజుల కిందట మా రాజ్యసభ ఫ్లోర్ లీడర్ సురేష్ రెడ్డి గారిని, అదేవిధంగా అందుబాటులో ఉన్న రాజ్యసభ సభ్యుల్ని పెద్దలు కేసీఆర్ గారు లంచ్కి పిలిచారు. మీటింగ్ కూడా అయింది, చర్చ కూడా జరిగింది ఏం చేద్దామని. చర్చించిన తర్వాతనే, అందుబాటులో ఉన్న ముఖ్యులతో కూడా చర్చించిన తర్వాతనే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ ఎలక్షన్లో మేము ఎవరికి కూడా సబార్డినేట్ కాదు, ఎన్డీఏ సబార్డినేట్ కాదు, మేము ఇండియా సబార్డినేట్ కాదు, మేము తెలంగాణ ప్రజలకు సబార్డినేట్ అంతే. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన వారి బాధను వ్యక్తం చేయడానికి ఇది ఒక వేదికగా వాడుకుంటున్నాం. తెలంగాణ రైతుల పక్షాన ఈ ఎన్నికల్లో మేము పాల్గొనబోవట్లేదు.
याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने DSO ऑफिस का दौरा किया और राशन कार्ड दरखास्तों के ज़ेर तवा मसाइल का जायज़ा लिया। मालूम हुआ है कि ASO सतह के जांच मुकम्मल होने के बावजूद 6500 से ज़ायद दरखास्तें DSO सतह पर रुकी हुई हैं, जिसकी बड़ी वजह अमले की कमी और पुरानी फाइलों का बैकलॉग बताया है। एमएलए ने DSO से दरखास्तों के क्लियरेंस तेज़ करने और इजाफी अमला तैनात करने की अपील की ताकि गरीब आवाम को बर वक्त राशन कार्ड मिल सके। उन्होंने कहा कि ये कार्ड सिर्फ राशन के लिए नहीं बल्कि आरोग्यश्री, मकानात और दीगर फलाई स्कीमात के लिए भी ज़रूरी हैं। AIMIM ने यकीन दिलाया कि वो इस मसले पर हुकूमत से मुसलसल राब्ता रखेगी ताकि आवाम को मज़ीद ताख़ीर के बग़ैर सहूलत फराहम हो। आज मैं और मेरे साथ में याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स DSO ऑफिस आए हुए हैं राशन कार्ड के लिए, क्योंकि आवाम को बड़ी दिक्कत हो रही है कि राशन कार्ड की इंक्वायरी हर एक को पेंडिंग बता रहा। अगर फ़र्ज़ करिए ASO कने से इंक्वायरी होके फॉरवर्ड होके आती DSO कने, तो DSO कने हज़ारों फाइलें पेंडिंग पड़े हैं, जिसके लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे और मेरे साथ में याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जनाब सोहेल खादरी साहब, अलमारूफ महमूद खादरी साहब, जनाब अलमदार वाले जाही साहब, जनाब शफाहत साहब, जनाब वासिउद्दीन साहब और दीगर मजलिस के ज़िम्मेदारों के साथ में हम यहाँ पर तशरीफ़ ला के DSO साहब से बात करें, तो हमको ये पता चला कि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अभी DSO साहब के ने करीब 6500 एप्लीकेशन क्लियर करने के पेंडिंग है। इसके अलावा ASO कने भी काफ़ी एप्लीकेशन पेंडिंग है। उसकी रीज़न ये है कि अगर फ़र्ज़ करो DSO से यहाँ पे क्लियर होंगे तो ASO वापस और भिजा सकते, वरना अगर ASO भिजाते तो और पेंडिंग होते। तो हम ख़ास DSO साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास की क्या बल्कि जो भी लोगों की इंक्वायरी है उसको जल्द से जल्द क्लियर कर दे, ताकि आवाम में बड़ी बेचैनी है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने बड़े ज़ोरों शोर से ऐलान किया था कि भाई हम राशन कार्ड अगस्त तक मुकम्मल कर लेंगे, अगस्त जाके सितंबर हुआ। अब जो हिसाब से प्रोसेस चल रहा, हमें ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस काफ़ी डिले हो रहा है। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि जितना हो सके जल्द से जल्द, ताकि इंक्वायरी क्लियर हो जाए। राशन कार्ड एक राशन पर्पस के लिए मत समझिए आप, इसके साथ कई लोग बीमार होते हैं, आरोग्यश्री के लिए भी राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और कई गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। जो BPL फैमिली है, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली है, उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए DSO साहब ने हमको एश्योरेंस दिया है कि जल्द से जल्द क्लियर कराएंगे और ज़्यादा ऑपरेटर्स को लगा के बहुत जल्दी क्लियर कराने का हमको वादा किया है। इंशाल्लाह जैसा भी रहेगा हम आवाम को बताएंगे और जितना जल्द हो सके राशन कार्ड आवाम को दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। इसकी ख़ास जिम्मेदारी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ साथ हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास हिदायत पर निगरानी के अंदर ये काम अमल में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तलबा के लिए खुशखबरी सुनाई है। महकमा तालीम ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए दशहरे की तातीलात का ऐलान किया। मुतालिका खबर रिसां सिलसिले में पीर को अहकाम जारी किए गए हैं। बदकम्मा त्यौहार से लेकर दशहरा तक की तातील देने का फैसला किया गया है। रियासत के तमाम स्कूलों को 13 दिनों तक दशहरा की छुट्टियाँ दी जाएंगी और महकमा तालीम के कैलेंडर के मुताबिक ये तातील 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रहेगी। इसके बाद स्कूल 4 अक्टूबर को दोबारा खुलेंगे। ताहम 5 अक्टूबर को इतवार होने की वजह से स्कूल 6 तारीख को खुलने के इम्कानात है। इसी दौरान इस बार इन तातीलात में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा और एक ही दिन आ रहे हैं। मजीद ये कि 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जूनियर कॉलेजों को भी छुट्टियां दी जाएंगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेदारम और बासारा मंदिरों की तरक्याती मनसूबों का जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें उहदेदारों ने मुजव्वज़ा मास्टर प्लान पेश किया। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि मेदारम मंदिर को आने वाले मेदारम महा जात्रा से कबल तमाम सहूलतों के साथ तैयार किया जाए और तरक्याती काम 100 दिन में मुकम्मल किए जाए। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम तामीरात कुदरती पत्थरों से किए जाएंगे और अक़ीदतमंदों के लिए बेहतर दाखिला और इखराज और पार्किंग की सहूलत फराहम की जाएगी। जम्पन्ना वागू पर पानी रोकने के लिए चेक डैम बनाने के अहकाम दिए गए हैं और इसी हफ्ते मेदारम का दौरा करके कामों का मुआयना करने का ऐलान किया गया। बासरा मंदिरों की तोसी मंसूबे में मुकामी जज्बात और पुजारियों
वज़ीरों की राय को अहमियत देने की हिदायत दी गई है। इजलास में वज़रा और सीनियर ओहदेदार शरीक थे। यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाली चिकिता तानीपति ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चिकिता पहली भारतीय खातून है जिन्होंने कनाडा में मुनक़दा यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया और शांघाई में सीनियर वर्ल्ड कप टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। वजीर आला ने चिकिताई को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और यकीन दिलाया कि हुकूमत उन्हें ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए तमाम सहूलियात और तरतीब और तरबियत फराहम करेगी। जीएचएमसी कमिश्नर हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आरवी करना ने जुबली हिल्स असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक अहम इजलास मुनक़्क़द किया। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को मुश्तरका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी और 17 सितंबर तक नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन, तब्दीलियाँ और इजाफे खुसूसी मुख्तसर तरमीमी प्रोग्राम के तहत मुमकिन है। कमिश्नर ने कहा कि 1 जुलाई 2025 तक 18 साल मुकम्मल करने वाले हर फर्द का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना ज़रूरी है और 30 सितंबर को हतमी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। उन्होंने सियासी जमातों से अपील की कि वो वोटर लिस्ट को मुकम्मल और दुरुस्त बनाने में मुकम्मल ताउन करें। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी तेलंगाना यूनिट की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें मुबैना हितक इज्जत के मुकदमे से राहत दी है। चीफ जस्टिस BR गवाई ने सरबराही वाली बेंच ने तमाम फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद बीजेपी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि अदालत को सियासी महाज़ाराई का मैदान नहीं बनाया जा सकता। ये मुकदमा रेवंत रेड्डी के एक इंतखाबी बयान पर मबनी था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी 400 से ज़ायद सीटें जीतती है तो आइन में तरमीम करके दर्ज फहरिस्त ज़ात व क़बाइल और दीगर पसमानदा तबक़ात के रिज़र्वेशन ख़त्म कर सकती है। हाई कोर्ट ने पहले ही ये मुकदमा खारिज कर दिया था जिसे बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।